Namaste, you are watching Utthan, and this is Isha. Today we have the renowned personality who has been in this industry, Bollywood, for more than 18 years. Yes, I repeat, 18 years. Please welcome Mr. Rushad Rana. Hello, sir. How are you? Hi, I'm fine. Thank you, Isha. Thank you so much. Sir, I would like to ask this question. Um, what motivated you to become an actor? Actually, my school days journey inspired me to become an actor. Actually, मुझे school time में stage पे जाने का बहुत शौक था. जी. And I was always taking part in fancy dress competitions, plays. So I think that's where it got started. So that was one process I used to enjoy a lot. But Mm-hmm. at that time, I never thought that I'll become an actor. I had other aspirations. I thought I'll be a lawyer. फिर कॉलेज में आया तो शुरू में लगा कि I'll be a photographer. But acting kind of just happened. Once I came to college, I got a portfolio made, just thinking कि I should try my hands at modeling and all that. Mm-hmm. तो मॉडलिंग के लिए ट्राई करते करते फिर I came across an audition for my first show, which was Hippe Pure, Mm-hmm. and that's how my acting journey began. हाँ, So वो acting हैप्पी was not पूरे something was that I planned. हाँ जी, It ओके। was not something that I planned. It was something that I enjoyed back in school. हुँ, और स्कूल में जब मैं प्लेस वगैरह करता था स्टेज पे ना एक अलग ही थ्रिल मिलती थी, एक अलग ही खुशी मिलती थी. हुँ, तब हुँ, तो अंदाजा नहीं था कि व्हाट दिस हैप्पीनेस इज. आई डिडंट नो, आई डिडंट अंडरस्टैंड, बट ओनली व्हेन आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग हुँ। for ad films, started facing the camera, is when I realized that the true joy for me lies in being in front of the camera. Okay, that's nice. Since you have been in this industry for 18 years, and I know I'm very sure this Actually, it's journey. not 18 years. It's 20 years now. It's 20 years plus. I'm on the 21st year in the industry. Yeah, it's like 20 years now. I'm very sure the journey might not have been so easy for you. Tell us something about your journey. आप कुछ हमारे श्रोताओं को अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मेरी जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं रही है. उसमें बहुत स्ट्रगल रहा है. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट सिंस आई एम अ मुंबईकर, I'm born and brought up in Mumbai. मुझे लगता है कि मेरी आधी स्ट्रगल कम हो गई है, because when I see people from out of town coming to हुँ, Mumbai and struggling, हुँ, I always say कि यार hats off to you guys, because first of all, practicalities, staying in a city like Mumbai, getting a place on rent, हुँ, figuring out lot of other things, उसके बाद जाके इतने competitive industry में काम ढूंढना, वो राइट। अपने आप में एक अलग ही स्ट्रगल है. तो हुँ, इस उस हिसाब से मुझे लगता है, बिकॉज आई एम अ मुंबईकर, आई एम born and brought up here, I have a home, I don't have to worry about the rent, I हुँ, have wonderful parents who support me. तो यस। मेरा आधा स्ट्रगल तो उसमें ही कम हो गया है. हुँ, बट एट द सेम टाइम, यस, स्ट्रगल इज ऑलवेज देयर. स्ट्रगल आज भी है, आज भी ऑडिशंस देने पड़ते हैं, आज भी वो उस कॉल का इंतजार रहता है, व्हेन यू गिवन अ गुड ऑडिशन फॉर अ गुड प्रोजेक्ट एंड यू फील के यू शुड गेट द पार्ट. राइट। और कभी कभी वो कॉल आ जाता है और आप कंफर्म हो जाते हो. हुँ, और हुँ, कई बार वो कॉल नहीं आता है और सिर्फ एक मैसेज आता है कि यू कैन रिलीज योर डेट्स, हुँ, यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड. तो उसमें आज भी बहुत दुख होता है. सो द स्ट्रगल हैज ऑलवेज बीन देयर, बट आई हैव बीन वेरी लकी कि आई हैव, मतलब, God has been so kind कि I have never been out of work. The only 3 years that I was out of work, वो एक, it was a self proclaimed sabbatical that I took. वो खुद से मैंने वो ब्रेक लिया, बिकॉज मैं दो फिल्म्स कर रहा था उस पीरियड में, और उन दो फिल्म्स करते करते काफी टाइम निकल गया. एंड दे हैड आस्क्ड मी नॉट टू डू टीवी इन दैट पीरियड. हुँ, नॉट बोथ द फिल्म्स, वन ऑफ द फिल्म्स हैड आस्क्ड मी टू नॉट डू टीवी इन दैट पीरियड. तो हुँ, वही एक पीरियड था 3 साल का, जिसमें मैंने टीवी नहीं किया, जिसमें एक मैंने ब्रेक लिया, लेकिन वो भी चाह के नहीं लिया, बिकॉज आई वाज टोल्ड आई हैड टू टेक दैट. हुँ, और बस दैट वाज द ओनली पीरियड व्हेन आई वाज नॉट डूइंग रेगुलर बैक टू बैक वर्क. अदरवाइज बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब अभी पैंडेमिक में भी, पोस्ट पैंडेमिक, इमीडिएटली आई हैव स्टार्टेड वर्किंग. आई एम ऑलरेडी डन विथ 2 वेब सीरीज. अभी हुँ, एक थर्ड वेब सीरीज पे काम ऑलरेडी, शूट ऑलरेडी चालू हो गया है. I'll हुँ, be traveling to Dehradun for the shoot.
So, like I said, God is very kind, and I like to be like this. I like to be constantly busy. मेरे को लंबे gaps बिल्कुल भी पसंद नहीं है. जी, जी, जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने अभी बताया अपने जर्नी के बारे में, आप क्योंकि मुंबई का रहे तो एक आपके पास प्लस पॉइंट रहा। हालाँकि जब आप नॉर्थ रीजन में आते हैं या नॉर्थ एरिया में आते हैं तो उस वक़्त में उस से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ जो नॉर्थ एरिया के पेरेंट्स हैं वो ख़ास तौर से ये सोचते हैं कि मुंबई जाना या बॉलीवुड में काम करना स्टेबल नहीं है या अच्छा नहीं माना जाता। उनके लिए व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू कन्वे उनको क्या बताना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स मतलब क्योंकि वो फेस भी ज़्यादा करते हैं। जैसे आपने बताया आपका अपना घर था, पेरेंट्स थे, कोई रेंट की प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं और जाके उनको फेस भी करना पड़ता है। तो उसके Correct. बारे में कुछ आप कहें? जी, मुझे लगता है जहाँ तक पेरेंट्स फिक्र करते हैं कि बच्चे नॉर्थ से यहाँ आएंगे, नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे, उनको काम मिलेगा या नहीं, वेदर दे विल बी एबल टू फाइंड अ गुड प्लेस, हुँ, अगर अच्छी जगह ढूंढ भी ली तो उनको अच्छे लोग मिलेंगे या नहीं. मुझे जी। लगता है उनकी फिक्र जो है, उनकी वरीज जो है, वो बिल्कुल भी जायज है. हुँ, हुँ। एंड अभी हाल ही में हमने देखा है कि कितने सारे जो आउट ऑफ टाउनर्स यहाँ मुंबई में आते हैं, अकेले रहते हैं, डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कमिट करते हैं. तो हुँ, ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा इन्वॉल्व रहना चाहिए अपने अगर उनके बच्चे ऐसा स्टेप लेना भी चाहते हैं तो हुँ, उन्हें एनकरेज करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम आई थिंक दे शुड बी इन्वॉल्व. उनके हर चॉइस में उनको इन्वॉल्व होना चाहिए कि वो उनको ठीक ठाक घर मिल पा रहा है या नहीं, कौन सी लोकेलिटी में घर मिल रहा है, हुँ, और फिर उनकी स्ट्रगल कैसे हो रही है. बिकॉज मैं देखता हूँ कई एक्टर्स जो बाहर से आते हैं यहाँ पे थोड़े से गुमराह भी हो जाते हैं. हुँ, दे गेट इनटू डिप्रेशन, दे गेट इनटू रॉन्ग हैबिट्स लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, ये वो. अभी ये सारी चीजें बहुत सारी बाहर भी आ रही है. हुँ, तो हुँ, आई जस्ट फील पिटी फॉर सच पीपल. मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को गाइडेंस की जरूरत है. ऐसे लोग बहुत अकेले पड़ जाते हैं. हुँ, तो हुँ, आई वुड लाइक टू टेल सच पेरेंट्स कि आप अगर अपने बच्चों को हिम्मत करके अगर भेजते भी हैं तो हुँ, उनके कांस्टेंट टच में रहिए जब तक वो सेट नहीं हो जाते. आई वुड से अगर इफ इट्स पॉसिबल ट्राई एंड स्टे विद देम टिल दे आर सेट. जब तक राइट। उनको एक ठीक ठाक काम नहीं मिलता, जब जी, तक जी, इनको ठीक ठाक घर नहीं मिलता, अगर वो पीजी में रह रहे हैं तो किसके साथ रह रहे हैं, राइट। अगर रूम शेयर कर रहे हैं तो किसके साथ शेयर कर रहे हैं. हुँ, ये हुँ, सारी बेसिक चीजें अगर वो पहले से देखें और एक तरह से वो उनका एक बेस बन जाए, उसके हुँ, बाद इफ दे स्टेप बैक, दे गो बैक टू देयर प्लेस, और मतलब फिर वो एक ऊपरी तरफ से एक सुपरविजन रखे फिर भी ठीक है. बट आई रियली फील कि पीपल हु कम फ्रॉम आउट, हुँ, उनके लिए स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. हुँ, और हुँ, इसीलिए पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान ध्यान देना जरूरी है. And हुँ, what I always tell newcomers also is that give yourself a time frame. आप खुद को एक टाइम फ्रेम दीजिए कि हुँ, इतने टाइम में अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो इफ यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, आप राइट, वो चीज कर लीजिए, आप जी, उसमें चले जाइए. अगर आपका फैमिली बिजनेस है या यस, अगर आपकी अच्छी एजुकेशन हुई है एंड इफ यू हैव द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब, आई राइट। वुड सजेस्ट दैट जस्ट गो बैक एंड डू दैट. बिकॉज यहाँ पे अब खास करके इतना कंपटीशन हो गया है. मैंने देखा है अगर किसी का होना होता है वो फटाक से हो जाता है, हुँ, और हुँ, कुछ लोग लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और बेचारे उनका कुछ होता नहीं है. हुँ, हुँ, तो आई फील एवरी इंडिविजुअल शुड गिव देम सेल्फ अ टाइम फ्रेम कि हुँ, कितने हुँ, टाइम फ्रेम तक उनको स्ट्रगल करना है. एंड आई वुड ऑल्सो से दैट यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव विथ योर सेल्फ. राइट, भले ही आप बहुत ही हैंडसम है या आप बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अगर कुछ लोग आपको फीडबैक देते हैं, अगर वो आपको कहते हैं कि आपको अपने एक्टिंग पे काम करना चाहिए, आपकी एक्टिंग चाहिए उतनी ठीक नहीं है, हुँ, या हुँ, आप सिर्फ दिखने में अच्छे हैं, या आपकी कोई और स्किल्स हो सकती है, यू माइट नॉट बी अ ग्रेट एक्टर, यू माइट बी अ वेरी गुड सिंगर. तो मुझे राइट, लगता है आपको ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है. मैंने देखे हैं ऐसे कई केसेस. एक बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर है आज की तारीख में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं उनके साथ उनके स्ट्रगलिंग डेज में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी जिसमें ही डायरेक्टेड दैट शॉर्ट फिल्म. हुँ, हुँ, और तब वो एक्चुअली मुंबई आए थे एक्टर बनने, बट ही हुँ, एनरोल्ड हिमसेल्फ इन अ फिल्म मेकिंग कॉलेज. हुँ, हुँ, और वहां पे उनके करिकुलम में उनका था एक उनको हर चीज करना होता है, तो उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी एंड ही टुक मी इन दैट फिल्म. और when he directed that film, I told him, I said, boss, I think you should focus on direction. एक्टिंग ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है, बट अगर एक्टिंग में तेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को लगता है यू आर वेरी गुड एज अ डायरेक्टर. बिकॉज वो जो एक दिन में मैंने उनके साथ शूट किया था,
मैं समझ गया था. So and today he is one of the leading directors of Bollywood. ओके। उन्होंने एक से एक बैक टू बैक सुपर हिट फिल्में दी है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट बॉय, एंड आई विश दैट समडे आई वुड वर्क विद हिम आल्सो. सो ऐसा है कि आपको ऑब्जेक्टिव रहना बहुत जरूरी है. एक चीज पकड़ के मत बैठिए, कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन. और जितना आप लोगों से क्रिटिसिजम्स लेंगे, उतना मुझे लगता है कि आप बेटर होंगे. राइट सो राइट। दैट इज वन. आई थिंक आपने एक चीज पूछी और मैंने 10 चीज आपको बोल डाली, नहीं, आपने बट बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया और हमें इन्फॉर्मेशन दी। एक चीज़ जो हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बहुत मूवीज़ में काम किया है, जैसे मोहब्बतें बड़ी मूवीज़ ने बिग नेम्स में काम किया है, मोहब्बतें में काम किया है, वीर ज़ारा में काम किया है और रब ने बना दी जोड़ी इसमें काम किया है। व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस ऑफ दोज़ प्रोजेक्ट्स? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और एक्टर्स के साथ काम करने में, पूरे उस प्रोजेक्ट में काम करने में? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहा है. देखिए, जब मैंने मोहब्बतें जब मैंने की थी, तब कोई आइडिया नहीं था कि मैं फिल्में करूंगा. आई वाज डूइंग माय फर्स्ट टीवी शो हिप हिप हुरे. हिप हिप हुरे से मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है आज की तारीख तक, मेहुल, वो हुँ, दरअसल यशराज की ऑफिस जाया करता था और एक दिन उनके साथ चला गया था. एंड निखिल अडवाणी जी वाज द एसोसिएट ऑन दैट फिल्म. हुँ, एंड ही सेड, अरे आई लाइक योर वर्क इन हिप हिप हुरे, तू क्यों नहीं ऑडिशन देता है? And राइट, that's how I auditioned for Mohabbatein and I ended up doing that film. So तब कभी सोचा नहीं था कि फिल्में करेंगे, but I would only want to say कि it was such a fantastic experience. और सारे एक्टर्स के साथ, सारे, चाहे बच्चन साहब हो, SRK हो, आदित्य चोपड़ा जी हो, यश जी हो, आई हैव बीन वन ऑफ दोस फॉर्चुनेट एक्टर्स जिन्होंने यश जी के साथ काम किया है. हुँ, सो इट्स जस्ट बिन अ वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस. और मुझे बस यही लगता है, इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करके मुझे लगा कि यार, ये लोग जो बड़े बनते हैं वो मेहनत और अपने ह्यूमिलिटी से ही बड़े बनते हैं. ऐसे ही कोई बड़ा नहीं बन जाता. जी, सबने जी। बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी लाइफ में. लोगों को लगता है अरे वो तो अब बड़े लेवल पे पहुंच गए. बड़े लेवल पे पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या परिश्रम किए हैं, उन्होंने क्या क्या जद्दोजिहाद किए हैं, वो वही लोग जानते हैं. हुँ, And when you interact with these big people, when you interact with these big stars, these, enormous celebrities, दे आर वेरी हम्बल। but still they are very normal. They are very normal. They are very humble. मतलब मैंने खुद ने शाहरुख खान को नीचे प्लेटफॉर्म पे बैठ के बर्गर खाते हुए देखा है, with no qualms whatsoever. हुँ, And I used to be like, यार, मतलब दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम. और मैं इतना खुश नसीब समझता हूँ खुद को कि मैंने अपने इनिशियल करियर के डेज में मैंने ये सब लोगों को देखकर इतना कुछ सीखा है. एंड आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच विल नेवर लीव मी. दैट वो जो सीख है वो कभी मुझे छोड़ेगी नहीं. मतलब कि वो देख के मुझे लगता है कि यार, व्हेन दीज बिग गाइज कैन बी सो हम्बल, सो हुँ, डाउन टू अर्थ, हम लोग क्यों नहीं सीखे इन लोगों से? So राइट, that is, I mean, apart from, of course, being a part of such big films, हुँ, वो तो एक आपके बायोडाटा में लाइफ लॉन्ग रहता ही है. हुँ, बट जो एक सीख मैंने ली है इन लोगों से, दैट विल बी विथ मी फॉर माई लाइफ, विच हैज बीन अ वंडरफुल थिंग फॉर राइट, राइट, राइट। सर साथ में मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आपके पास टाइम इस वक़्त कम है और हम जो है आपसे और भी क्वेश्चन पूछते हैं। आई विल कैच यू सम अदर डे फॉर सम मोर क्वेश्चन्स पर क्योंकि आपको कहीं और जाना, आपके एंगेजमेंट्स हैं और तो जस्ट लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी व्हाट आर योर फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हमें देखने चाहिए एक अच्छे मतलब हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए जो आने वाले हैं और हम उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऑफ कोर्स बिकॉज़ you are one of the finest actors of industry. थैंक यू सो मच. सो काइंड ऑफ यू टू से दैट. अभी अभी इनफैक्ट उल्लू पे पेशावर हैज रिलीज्ड. जी, जो पेशावर हैज इज गेटिंग वेरी गुड रिव्यूज. जी, अभी उसके अलावा आफ्टर द लॉकडाउन मैंने दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग प्रोजेक्ट्स किए हैं. एक वेब सीरीज की है मैंने, कॉल्ड चीटर्स, जो okay, कि सुनील मनचंदा जी है, मैड फिल्म्स उन्होंने बनाई है. ही हैज प्रोड्यूस्ड इट एंड okay, डायरेक्टेड इट. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. कहानी तो मैं अभी रिवील नहीं कर पाऊंगा और अभी तक पोर्टल भी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन से पोर्टल पे वो लोग रिलीज करने वाले हैं. बट इट हैज अ वंडरफुल स्टार कास्ट. इट्स गॉट राजीव खंडेलवाल, मंजरी फडनेस और भी बहुत सारे उम्दा थिएटर के एक्टर्स हैं. हुँ, मैंने एक बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उसमें प्ले किया है. तो एक तो चीटर्स हो गई.
दूसरी एक वेब सीरीज मैंने की है कॉल्ड इल्जाम. इल्जाम इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इट्स अबाउट अ स्टोरी ऑफ टू कॉप्स. उसमें से वन ऑफ द कॉप्स मैंने प्ले किया है and the other cop is played by Dev Sharma, who's also a wonderful guy and wonderful actor. तो अभी हालांकि ये दो प्रोजेक्ट्स रेडी है. इल्जाम की डबिंग चल रही है आजकल. And apart from that, now I've just started shooting for Punch Beat Season 2, जो कि ऑल्ट बालाजी का आज तक का सबसे मैं बोलूँगा पॉपुलर ट्रम्प कार्ड शो है उनके लिए. तो पंच बीट हमने की थी 2017 में. हमने पंच बीट की थी. इट रिलीज इन 2018. और अब हम पंच बीट सीजन 2 शूट करने जा रहे हैं. लेकिन इस बार काफी डिफिकल्टीज हो रही है शूट करने में बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. हमें देहरादून जाके शूट करना है. परमिशंस मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो शूट थोड़ा सा डिले हो रहा है. तो अभी पंच बीट पे काम शुरू हो गया है. एंड नेक्स्ट मंथ आई एम स्टार्टिंग वर्क ऑन अ वेब सीरीज फॉर मिस्टर विक्रम भट्ट. इट्स कॉल्ड माया. माया के 3 सीजन ऑलरेडी हो चुके हैं. आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द 4th सीजन. तो नेक्स्ट मंथ माया पे काम शुरू हो जाएगा. बस अभी तो ये है. बाकी ऑडिशंस देते रहते हैं. बाकी क्या वर्कआउट होता है वो तो टाइम ही बताएगा. Sir, thank you so much for your time, for being with us. We are so lucky to have you on our show, and all the best for your future projects, upcoming projects. और हम बेसब्री से आपके प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहे हैं और मैं तो जरूर आपके प्रोजेक्ट्स देखने वाली हूँ. Thank you so much. Thank you and all the best to you too. Thank you, sir. Thank you.